ہمارے 2 نئے معاہدے ہوئے, ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا. لیکن آج پروفیسر برہان الدین کی ہلاکت کے بعد افغانستان سے جو پیغام آ رہا ہے وہ مختلف نوعیت کا ہے. ابھی خبروں میں چلا ہے, 9 بجے کی خبروں میں چلا ہے کہ 8 اکتوبر کو کی جو میٹنگ ہونی تھی, ٹرائیلیٹرل میٹنگ افغانستان میں, سیف علی کی میٹنگ, وہ کینسل کر دی گئی ہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں جو جوائنٹ کمیشن کا اجلاس ہونا تھا افغانستان اور پاکستان کا پیس اور ریکنسیلیشن کے لیے, شاید وہ بھی نہ ہو پائے. آج افغانستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان سمجھیں گے عوام کے لیے, کیا سمجھیں گے اس سے کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی میں مکمل ناکام ہو گیا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات جو ہیں ایک نیا رخ لے رہے ہیں. امریکہ کے اندر بڑی تبدیلی آ رہی ہے. امریکہ کی عوام جو ہے وہ آج اپنی انتظامیہ پر سوال اٹھا رہی ہے کہ 10 سال میں آپ نے کیا ہے. آپ نے اربوں ڈالر جھونک دی, بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا, ہمیں کوئی نتیجہ دکھائی نہیں دے رہا. ان کی اپنی معیشت جو ہے وہ بہت برے حال میں ہے, ڈیفیسٹ کا شکار ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو ان کا الیکشن آنے والا ہے, تو ان پر بے پناہ دباؤ ہے. اب اس دباؤ کے تحت وہ تلاش کر رہے ہیں کوئی سکیپ کوٹ. تو ایک آسان سکیپ کوٹ جو ان کو دکھائی دیتا ہے, جو قربانی کا بکرا دکھائی دیتا ہے, وہ پاکستان دکھائی دیتا ہے. تو وہ ساری توپوں کا رخ انہوں نے پاکستان کی طرف کر دیا ہے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آنے والے دنوں میں جو حالات بن رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمارے اداروں کے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں یکجہتی کی ضرورت ہے, اور جو عوام میں اور قیادت میں جو ایک خلیج ہے اس خلیج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام کو حقائق بتانے ہوں گے, پاکستان کی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا. کسی نے حقائق بتائے کہ حقانی نیٹ ورک سے متعلق ہم پہ الزامات کیوں لگائے گئے؟ صافی صاحب, کسی نے کل کی اس کانفرنس کے اندر کسی نے بتایا کہ حقانی کے حوالے سے ہم پہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ آسما, کل شروعات تھی, کل ایک آغاز ہوا ہے. میں عرض کر دوں, کل ایک آغاز ہے. کل کو آغاز سمجھیں, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں, اور میں آپ کے پروگرام سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمان کے نمائندگان سے کہہ رہا ہوں کہ 3 اکتوبر کا جو اجلاس آ رہا ہے یہ مختلف نوعیت کا اجلاس ہونا چاہیے. یہاں لوگوں کو اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر, اپنی سیاسی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر بات کرنی ہوگی, اور صحیح کہنا ہوگا, سپیڈ کو سپیڈ کہنا ہوگا. زبردست, یہ بات تو ہم سب, بالکل ہماری سب کی خواہش ہے, ہم سب کی خواہش ہے. لیکن صافی صاحب اس سے الگ ہے, کیا کل کے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اب کے بعد پارلیمنٹ پالیسیاں بنائے گی اور باقی سب کو ڈکٹیشن صرف پارلیمنٹ دے گی؟ کیا کہ کل یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور سیاسی قیادت کو یہ فیصلہ لے کے نہیں اٹھنا چاہیے تھا کل؟ دیکھیں آسما, اس وقت جو اصل مخمصہ ہے پاکستان کا, اور جو ہماری پالیسی کے جن تضادات کا میں ذکر کر رہا تھا, وہ یہ تھا کہ ایک طرف اس وقت طالبان, القاعدہ اور ان کے جو باقی سمپتائزر ہے وہ مشرف کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے, اور موجودہ حکومت کے بارے میں بھی, کہ یہ امریکی غلام ہے, یہ امریکی اشاروں پہ چل رہی ہے, اور اس نے امریکہ کے لیے مسلمانوں کے خلاف اور اپنے لوگوں کے خلاف یہ کچھ کیا ہے, اور اب بھی امریکہ کو اڈے اور روٹس دے دیے ہیں. دوسری طرف امریکہ اور اس کے دیگر مغربی اتحادیوں کا کہنا یہ ہے, انکلوڈنگ افغان گورنمنٹ, کہ پاکستانی حکومت ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے. افغانستان میں اگر کرزئی حکومت فیل ہو گئی ہے, یا پھر اگر امریکہ, یہ الزام کیوں لگا, یہ میں نے بریک کے بعد پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ, اور سردار صاحب سے بھی, کہ یہ الزام ہم پہ کیوں لگ رہے ہیں؟ ہمیں کیا اپنے گریبان میں نہیں جاننا چاہیے؟ کیا ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئیں؟ اور اگر ہوئی ہیں تو وہ غلطیاں کیا ہیں, اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے, اور ہمارے مہمانان گرامی بھی ہیں ہمارے ساتھ. گفتگو میں ہماری عوام بھی ہے جو کہ بات کرے گی, اور منور حسن صاحب ہمیں جوائن کریں گے اب سے تھوڑی دیر کے بعد, اور اگر وہ ہیں موجود تو ان سے ہم بات بھی شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم منور صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
जी, मुनव्वर हसन साहब, यहाँ पे ऑडियंस भी हमारे साथ है और मेहमान भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कल की जो करारदाद या मुसव्वदा हुआ, उसमें ज़ाहिर है आपका इनपुट भी था, मगर लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। लोगों का कहना है कि ड्रोन अटैक्स के हवाले से उस तरह से बात नहीं हुई, और ये अगर मगर जो सब तय हुआ वो गुफ्तगू में हुआ, रिटर्न में कुछ नहीं आया। क्या नहीं आना चाहिए था सब अगर मगर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हुकूमत 4 साल से इस मुल्क में हुक्मरानी कर रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो सबको अंदाजा है कि कितनी और क्या है। फिर इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि ये मुत्तफ़िक़ा करारदादें जो पार्लियामेंट ने मंजूर की, एपीसी जो 2 हो चुकी हैं पहले, उसकी मुत्तफ़िक़ा करारदादें, वो सब अभी तशनाए तकमील इस हवाले से हैं कि मुंतज़िर हैं कि कोई उन पर अमल दरामद हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का यही मामला है। तो इसलिए इस खौफनाक और भयानक गैप के और डिस्टेंस के होते हुए ये एपीसी मुनक्किद हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पस मंज़र में, और कोशिश की गई है कि क्रेडिबिलिटी गैप को भी कम किया जाए, और उसी के साथ साथ लोगों की जो तवक्कात हैं वो तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं और वजह तौर पर है, इसलिए कि मैंडेट उनको दिया है लोगों ने, तो उसको भी कम किया जाए। तो इस एतबार मुनव्वर साहब, से एक सवाल जो एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो वहाँ पे अस्करी क़यादत भी थी और सारी कौमी क़यादत भी थी। क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि फ़ैसला किया जाए कि पॉलिसियाँ कौन बनाएगा, ताकि उनके बाद उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाए जो पॉलिसी बनाएगा? क्या ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए था कल के इस इजलास में? नहीं, इस इजलास में तो फैसले की जरूरत नहीं है। मुल्क के आइन के तहत ये फैसला मौजूद है कि पॉलिसियां पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी अपनी हैसियत है। जो हुकूमत है वक्त की वो पॉलिसियां बनाएगी। उसको रिपीट भी कर दिया गया है, कल की रेजोल्यूशन में भी उसके हवाले से ये बात की गई है सिविल हुकूमत के, और जाहिर है कि फौज तो उसके मातहत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, क्या वाकई मातहत है, और क्या पॉलिसियाँ पार्लियामेंट बनाने में आज़ाद है या हो सकती है? पार्लियामेंट तो आज़ाद है, लेकिन जो लोग एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में हैं उनको उस पर जिस तरह अमल करना चाहिए, अभी तक तो वक्त और हालात ने यही बताया है कि उस पर अमल नहीं करते। बल्कि अमल क्या नहीं करते, जिस मैनिफेस्टो के तहत, जिस मैंडेट के तहत, जिन कमिटमेंट्स के साथ लोग बरसर इक़्तिदार आए हैं, उसमें पहला ऐलानी हुकूमत बनाने के बाद ये किया गया था कि अवाम ने परवेज मुशर्रफ और उसकी पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन सबको पता है कि परवेज मुशर्रफ ही का राज है और उसी की पॉलिसियों का एक्सटेंशन है जो पिछले 4 साल से जारी है। इसीलिए लोगों में गम गुस्सा भी है, और इसीलिए फिर पार्लियामेंट ने जो करारदादें मंजूर की थी, बजा तौर पर लोग ये तवक्को रखते थे कि उसके नतीजे में हालात बदलेंगे और तब्दीली और तरजीह। और अब शुनीद है कि हालात बदलेंगे। सर, बहुत शुक्रिया मुनव्वर हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। है कि हालात बदलेंगे सरदार साहब, ऐसा है? अमल दरामद होगा, कमेटियां सिर्फ बनाई नहीं जाएंगी बल्कि आज़ाद भी होंगी? देखिए, बात से मुझे इत्तफाक करना पड़ेगा कि इस हुकूमत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिलाशुबा काबिल एतमाद नहीं रहा, और पार्लियामेंट की तमाम करारदादें और पब्लिक की जो पूरे मुल्क की ख्वाहिशात हैं वो बिल्कुल एक तरफ, और हुकूमत अपनी एक डगर पर चलती रही है। लेकिन इस बात से भी हमें इत्तफाक करना पड़ेगा, और जैसे आज मियां नवाज शरीफ साहब ने कल वहाँ पर भी कहा और आज भी कहा, जो आपने सवाल उठाए, बुनियादी तौर पर ये सवाल उन्होंने कल वहाँ उठाए कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये एक मखसूस मकासद से बनती रही है, और अब वक्त आ गया कि आप इनको रिव्यू करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक कि मुल्क के अंदर जो मुल्क के अंदर के हालात हैं, ये आपकी इंडेक्स हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी का। आपके मुल्क में इकॉनमी जो है वो तकरीबन तबाही के आखिरी दहाने पर जा चुकी है। आप एक मकरूज़ मुल्क हैं, $60 बिलियन का आपका कर्ज है, और इतने 50 अरब डॉलर के करीब जो पाकिस्तानी रुपए में कर्ज है। तो एक तरफ तो हम भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो ये आज़ादी की बातें नहीं है। पहले हमें मुआशी तौर पर, पहले माशी तौर पर भी हमें आज़ाद करना है। फिर उन्होंने कहा कि जो मुल्क के अंदर इतनी डिवीजन है, ठीक, फ्रेगमेंटेशन है, बलोचिस्तान के हालात हैं, फिर हमारे ट्राइबल एरिया में वहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशंस है, कराची में जो सिचुएशन है वहाँ पे एक किस्म का तसादम है बहुत शदीद। तो ये सारे वो हालात हैं कि जो आपके मुल्क के अंदर के हालात को जब तक ठीक नहीं करेंगे आप एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बना नहीं सकते। तो इसका उन्होंने इज़हार किया। अब जो सही बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है
जो हुकूमत जिसके पास इख्तियार है, पॉलिसी उसको सेट करनी है, उसको तय करनी है और पार्लियामेंट के अंदर उसको डिबेट के लिए लाना है। लेकिन हमारा ये खराबी हमारी ये रही है कि पार्लियामेंट से बाला फैसले होते रहे। और ये बात सबको पता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो वो GHQ में बैठ के फैसले करता था। तो उसके बाद भी GHQ और में होते उसके रहे बाद भी फैसले। आज भी बात ये दुरुस्त है कि बदकिस्मती से वो पॉलिसीज जारी हैं, क्योंकि सदर आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो हैं ये अपने मकासद हैं उसके लिए काम करते रहे हैं। तो जो भी बाहर से आप देखते हैं कि पिछले 4 सालों में जितने फॉरेन डेलीगेट्स आए, जो हाई पावर डेलीगेट्स है, वो 2-3 घंटे तो वहाँ गुजारते हैं GHQ में और वो आधा घंटा गुजारते हैं प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो ये खराबी और रही है। अमेरिका के लोग भी शामिल है जो आज हमें सबको हमारी फौज को भी अमेरिका के इल्जाम बारे दे रहे हैं। में मैं बिल्कुल समझूंगा कि कुरैशी साहब ने बिल्कुल कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं हो सकता, दुरुस्त बात। लेकिन हमारा ये हम अपने बच्चों को इस गुमराही में भी नहीं डाल सकते कि हम पाकिस्तान के लोग हम सारी दुनिया से लड़ना चाहते हैं। ये बात भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल आपने हम सही सारी बात की, दुनिया से लड़ना लड़ नहीं हमें सकते, जी। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने आप को एक आज़ाद मुल्क अपनी बनाने के गलतियों को लिए तो हमें तस्लीम अपनी करना गलतियों को, चाहिए। मियां साहब जी ने खुद कहा कि हमें अपनी गलतियों से, अगर हमने माजी में गुड इंटेंशंस जिसको आप कहते हैं नेक नीति से अगर हमारे फैसले हुए और वो गलत हो गए, जी। तो आप हमारे साथ कॉन्फिडेंस में ले लें और हम उन फैसलों को दुरुस्त करने के लिए आपके ठीक, साथ तैयार हैं। कुरैशी साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? जी आसमा बीवी, इस point पहली पे। बात तो ये है जो कल की करारदाद आई है, मैं ये बरमला कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इसके अमल दरामद में मुझे दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मैं जानता हूँ एक अंसर है, एक तबका है जो इसके रास्ते में रुकावट डालेगा। जिस नई डायरेक्शन की कल बात की गई है, जिस नई पॉलिसी को रिविज़िट का बात किया गया कल बात की गई है, मुझे खदशात हैं और मैं उसका खुल्लम खुल्ला इजहार आपके प्रोग्राम में कर रहा हूं और असेंबली के फ्लोर पे भी करूंगा। मैंने अपनी वजारत की परवाह नहीं की और अब भी मुझे अपनी सीट की परवाह नहीं है। मैं कौम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह ज़रूर करूंगा। एक बात। दूसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं वो ये है कि देखिए, दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूं वो ये है कि जिस अंदाज में, जिस तरह से ये ताकतें कौन सी हैं इनका भी बता दें, कौन सी ताकतें हो सकती हैं? ये मैं बताऊंगा, वो वक्त आ रहा है, वक्त आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है, बहुत दिन करीब आने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा। और आपने मुझे इसका कहा मतलब ना है कि आपके लीक्स भी आने वाले हैं, कुरैशी लीक्स, हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पीपल्स पार्टी के बहुत से सीनियर रहनुमा तो आज मुझसे कतराते हैं, हकीकत तो ये है। बहरहाल वो एक और मौजू है। दूसरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ ईमानदारी से, जिस तरीके से जो इस वक्त जो तर्ज हुक्मरानी है, अगर ये जारी रहा तो पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी में सुनाई दे रही है और इस तरह मुल्क का निज़ाम नहीं चलाया जा सकता जिस तरह मुल्क का निज़ाम चलाया जा रहा है। आपने सवाल किया कि हमसे गलतियां हुई। यकीनन हमसे गलतियां हुई और हमें उन गलतियों का एतराफ़ करना होगा। अगर हमसे इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? ढाका मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी से बड़ी गलती हमसे क्या हो सकती है? बारहा इस मुल्क में जमहूरियत की जो बिसात को लपेटा गया और नज़रिया ज़रूरत के तहत उसको कानूनी हैसियत दी गई, इससे बड़ी गलती हमसे क्या हो सकती है? बारहा जानते हुए कि ये लोग बदउनवान हैं, करप्ट हैं, नाअहल हैं, हमने उनको अपने पर मुसल्लत किया, तो इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? अब हम मजीद ये गलतियां नहीं कर सकते, हमें अपना किबला दुरुस्त करना है और अगर किबला दुरुस्त ना किया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात आने वाले हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या हक्कानी नेटवर्क जो हम अपनी फ्यूचर बैक समझ रहे हैं, ये पॉलिसी दुरुस्त है या गलत? आप मुझसे कह रही हैं? जी जी नहीं, हक्कानी जी सर, आपसे नेटवर्क को हम अपना नहीं, आप सवाल दोबारा कीजिए। सवाल क्या है आपका? हम ये अपनी फ्यूचर बैक समझते हैं ना हक्कानी नेटवर्क को, क्या वो दुरुस्त है फैसला? हम उनको समझना चाहिए हमें ऐसा या नहीं समझना चाहिए? देखिए, कोई भी जो पाकिस्तान की सरजमीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, वो हमारा दोस्त नहीं है। हमें दूरबीन निगाह से देखना होगा। हमने दुनिया से आइसोलेट भी नहीं होना, हमने दुनिया से लाताल्लुक़ भी नहीं होना और ना ही हमने अमेरिका के सामने घुटने टेकने हैं। अब ये दो मुख्तलिफ जाविये हैं और इन दोनों जावियों के अंदर रहते हुए हमने एक दरमियाना और एक समझदार रास्ता अख्तियार करना है। बहुत पॉलिटिकल विजडम वाली आपने बात की है एंड आई रियली अप्रिशिएट के जो बात आपने की है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।